का मैं मनीषा स्वामी, डिप्टी डायरेक्टर जनरल कल्चर, आईसीसीआर के अंदर स्वागत करती हूँ। और आज हमारे बीच डीजी श्रीमती नंदिनी सिंगला, माय कलीग डीडीजी और डीडीए के ऑफिशियल असिस्टेंट प्रिंसिपल कमिश्नर, एडिशनल प्रिंसिपल कमिश्नर डॉक्टर कल्पना जी हमारे बीच हैं। और आज हम 11वें भारतीय डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल, जो कि 16 से 18 जनवरी बानसेरा पार्क में होने जा रहा है, उस विषय में हमने आज यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की है। और हम आगे कार्यक्रम में आगे बढ़े उससे पहले हम आपके समक्ष एक प्रमोशनल वीडियो चलाना चाहेंगे। उसके बाद हमारे माननीय डीजी आपको संबोधित करेंगे और उसके पश्चात कल्पना जी काइट फेस्टिवल जो कि डीडीए ऑर्गेनाइज कर रहा है, उसी समय 16 से 18 बानसेरा पार्क में, उसके विषय में बताएंगे। तो हम उससे आगे बढ़े उससे पहले हम चाहेंगे कि आपके समक्ष एक प्रमोशनल वीडियो दिखाया जाए। थैंक यू। Premier institution for cultural diplomacy. With 38 Indian cultural centers worldwide, ICCR works closely with Indian missions and embassies, both abroad and in India, to promote Indian art, music, dance, yoga, languages, and culture through academic, artistic, and intellectual exchanges, strengthening people to people connections across nations. And once again, ICCR brings the world together, presenting the 11th India International Dance and Music Festival, a grand celebration of world cultures coming together on one stage. From 16th to 18th January at Basira Park, New Delhi, every evening from 4 p.m. onwards. This is a live, vibrant, open-air festival with free entry, bringing culture closer to the people and opening its doors to everyone. Artists from Kazakhstan, Burkina Faso, Malaysia, Lithuania, Kyrgyzstan, Maldives, Uzbekistan, and India will come together in this extraordinary celebration. Across 3 unforgettable evenings, over 148 internationally acclaimed artists will not only perform but will set a powerful cultural dialogue in motion. The festival opens on Friday, 16th January, with the Lakshmi Narayana Global Music Festival presented by legends Padma Vibhushan Dr. L. Subramaniam and Padma Shri Kavita Krishnamurti Subramaniam. Witness history unfold as the Astana Philharmonic Symphony Orchestra joins Dr. L. Subramaniam for the Indian premiere of his 40th composition, the Navagraha Symphony. The stage will come alive with the chamber choir of the Aktobe Regional Philharmonic, the Kaku Dance Ensemble, and the golden voice of Kavita Krishnamurti Subramaniam. On Saturday, 17th January, Rhythm from the Roots, with the Kantigi troupe of Orodara from Burkina Faso and its Afro Jazz revival, the folklore ensemble Alam and dance group Ademi from Kyrgyzstan, echoing the epic Manas tradition, and Radhe Radhe, the sweet surrender by Malaysia's Sutra Foundation under the artistic direction of Padma Shri Datuk Ramli Ibrahim. On Sunday, 18th January, cultures converge once more. With the Indo-Bodoveru fusion of two of us from the Maldives, the Indo-Lithuanian dance performance Rasos, and the fiery Tarona ensemble from Uzbekistan. Beyond Delhi, this celebration travels onward to Chandigarh, Shillong, Jammu, Bangalore, and Vadodara, sharing its magic far and wide. The India International Dance and Music Festival is more than a showcase of performance. It is a dialogue of cultures, a celebration of human creativity, and a tribute to the enduring spirit of cultural unity, strengthening international relations and fostering goodwill among nations. We invite the media community to be part of this story. Carry these voices to the nation, amplify the movement, the music, and the meaning. The India International Dance and Music Festival 2026. Let's celebrate cultures without borders. मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, डीडीए के असिस्टेंट कमिश्नर श्रीमती कल्पना खुराना जी, कजाकिस्तान दूतावास से आए हुए प्रतिनिधि, आप सबको नमस्कार। भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद की ओर से हार्दिक स्वागत। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि आईसीसीआर 11वें भारत अंतर्राष्ट्रीय नृत्य एवं संगीत महोत्सव, इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल
का आयोजन करने जा रहा है। जैसे कि आपने सुना अभी वीडियो में, यह महोत्सव 16 से 18 जनवरी तक बासरा पार्क, नई दिल्ली में प्रतिदिन शाम 4 बजे से प्रारंभ होगा। प्रवेश पूरी तरह निःशुल्क है। It is free and open to the public. Anybody who wants to attend is welcome. कोई टिकट या आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है और इस उत्सव में, जैसे मैंने कहा, सभी का स्वागत है। दिल्ली के उपराज्यपाल माननीय श्री विनय कुमार सक्सेना जी शुक्रवार 16 जनवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन करेंगे। इसमें पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका के 27 पत्रकार विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे। इन पत्रकारों को हमारे विदेश मंत्रालय ने यहाँ इनवाइट किया है, उनका प्रोग्राम है और हमारे कल्चरल इवेंट में ये स्पेशल गेस्ट के तौर पे मौजूद रहेंगे। इस 3 दिवसीय महोत्सव में 3 महाद्वीपों से, एशिया, अफ्रीका और यूरोप से करीब 150 कलाकार भाग ले रहे हैं। So we have almost 150 artists participating in this festival from 8 countries representing 3 continents, Asia, Africa and Europe. The countries are Kazakhstan, Malaysia, Maldives, Kyrgyzstan, Lithuania, Burkina Faso, Uzbekistan and Bharat, India. इन 8 देशों से कुल 148 कलाकार भाग ले रहे हैं, जिनमें भारत के 12 कलाकार भी शामिल हैं। So the total is almost 150. यह महोत्सव शुक्रवार 16 जनवरी को पद्म विभूषण डॉक्टर एल सुब्रमण्यम एवं पद्मश्री श्रीमती कविता कृष्णमूर्ति द्वारा प्रस्तुत लक्ष्मी नारायणा ग्लोबल म्यूजिक फेस्टिवल के साथ आरंभ होगा। इस भव्य प्रस्तुति में कजाकिस्तान के अस्ताना फिल्हार्मोनिक सिम्फनी ऑर्केस्ट्रा और गक्कू डांस ग्रुप के लगभग 70 कलाकार होंगे। So on the inaugural day, we will see a vibrant performance by a 68 member, almost 70 member Kazakh troupe comprising both an orchestra and a ballet group. And the music is composed by Padma Vibhushan L. Subramaniam ji, the renowned violinist, and Srimati Kavita Krishnamurti ji is also lending her beautiful voice to this performance, in which you will also have a Kazakh ballet dance component. So it promises to be a very interesting inaugural evening. I invite you all to join us on the 16th for sure. और दूसरी दिन 17th, जो सैटरडे है, शनिवार है, मलेशिया के सुप्रसिद्ध ओडिसी और भरतनाट्यम कलाकार पद्मश्री रामली इब्राहिम एक सुंदर नृत्य प्रस्तुत करेंगे, राधे राधे, जो कृष्ण लीला पे आधारित है। और यह महोत्सव के दूसरे दिन का मुख्य आकर्षण होगा। रामली इब्राहिम is a very renowned figure. He studied, I think, engineering in Australia, but finally came to India to study both Bharatanatyam and Odissi, to the point where the government of India has awarded him a Padma Shri, and he's participating in our festival with a troupe, and they will be performing a dance drama based on Radha Krishna's love story. That is something you should not miss. It's a rare treat, I would say. दिल्ली के बाद ये विदेशी कलाकार 5 अन्य शहरों में भी जाएंगे, अपनी प्रस्तुतियां प्रस्तुत करेंगे। चंडीगढ़, शिलोंग, वडोदरा, जम्मू,
और बेंगलोर। जैसे कि आप देख रहे हैं, हमने नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट इंडिया कवर किया है, ताकि इस महोत्सव का आनंद भारत में रहने वाले कोने कोने में जो लोग हैं उन सबको एक अवसर मिले। जैसे कि आपने अभी सुना, इस महोत्सव का आयोजन दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी के साथ हम कर रहे हैं, और इनका अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के साथ साथ इसका उद्घाटन भी हो रहा है और प्रस्तुति हो रही है 3 दिन, ताकि दर्शक अंतर्राष्ट्रीय नृत्य और संगीत के साथ साथ विश्व भर की रंग बिरंगी पतंगों का दुगना आनंद भी ले सके। मैं डीडी तथा दूरदर्शन को उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ। थैंक यू वेरी मच। आईसीसीआर का विश्वास है कि संस्कृति संवाद का सबसे सशक्त माध्यम है, और यही वसुधैव कुटुंबकम की भावना है। इंडिया इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल कला के माध्यम से देशों, दिलों और लोगों को जोड़ने का एक ऐसा प्रयास है। यह महोत्सव एकता, सौहार्द और वैश्विक सांस्कृतिक समन्वय का संदेश देता है। मैं आप सभी सम्मानित मीडिया साथियों का हार्दिक धन्यवाद करती हूँ, जिनकी उपस्थिति और सहयोग से इस महोत्सव का प्रचार प्रसार भारत सहित समस्त विश्व में होगा। I mentioned to you about the Malaysian and the Kazakh performances. ये भी बोलना चाहूँगी कि लिथुआनिया से भी एक डांस ट्रूप आ रहा है, और उनके डांसर्स इंडिया में डांस उन्होंने सीखा है। उनकी प्रस्तुति में आप 4 शास्त्रीय क्लासिकल डांस फॉर्म्स ऑफ इंडिया देखेंगे। सो इट विल बी अ रियल फ्यूजन ऑफ लिथुआनियन डांस एंड इंडियन डांस। और इसका जो म्यूजिकल स्कोर है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत पे आधारित है। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिथुआनियन फोक म्यूजिक एंड कर्नाटिक म्यूजिक। और मालदीव से जो म्यूजिक वाली बैंड आ रही है वो भी अनोखी है, बिकॉज दे विल ऑल्सो प्ले इंडियन क्लासिकल पीसेस अलॉन्ग विथ मालदीवियन म्यूजिक। ऐसे ही उज्बेकिस्तान से एक डांस ट्रूप आ रहा है जो भी फ्यूजन नृत्य दिखाएंगे। दे विल शोकेस देयर डांस फॉर्म्स अलॉन्ग विथ इंडियन dance traditions. So it promises to be a very interesting festival. I would request all of you to spread the word through your media channels. And आज के दिन आप यहाँ आए ICCR हेडक्वार्टर्स में, इसके लिए मैं तहे दिल शुक्रिया कहना चाहती हूँ, और ICCR की तरफ से आप सबको नया साल का हार्दिक अभिनंदन। धन्यवाद। अब मैं उप महानिदेशक श्रीमती मनीषा स्वामी से अनुरोध करती हूँ कि इस फेस्टिवल के जो डिटेल्स है, प्रोग्राम एलिमेंट्स वगैरह, उसके बारे में थोड़ा विस्तार में हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद मैम। वैसे तो मैम ने आपको एक ओवरव्यू दे ही दिया है प्रोग्राम के एलिमेंट्स का, और मैं ये बताना चाहूंगी कि दूसरे दिन 17 जनवरी को हमारा एक बुर्किना फासो का भी ग्रुप है जो प्रस्तुति दे रहा है, और एक एफ्रो जैज करेगा। तो उसी दिन हमारा दूसरा जो परफॉर्मेंस है वो किर्गिस्तान का है जो फोक लोर करेगा। तो आप देख सकते हैं कि बहुत विविधता है। एक तरफ हम अफ्रीकन म्यूजिक प्रस्तुत कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम एक किर्गिस्तान से एक फोक जो होता है, लोक जो नृत्य है, जो लोक काव्य है, वो हम प्रस्तुत कर रहे हैं। और जैसा कि मैम ने बताया कि मलेशिया से हम उसी दिन 17 तारीख को शाम को राधे राधे जो प्रस्तुति है, और वो श्री रामेल इब्राहिम के द्वारा की जाएगी। और अंतिम दिन मालदीव्स लिथुआनिया जो कि इंडो लिथुआनियन ग्रुप है फ्यूजन, वो प्रस्तुति दे रहा है। और हम इस कार्यक्रम का समापन करेंगे तरौना करके एक ग्रुप है जो उज्बेकिस्तान से आया है, उसके द्वारा हम इस कार्यक्रम को, इस फेस्टिवल को की समाप्ति करेंगे।
और प्रोग्राम एलिमेंट्स के अलावा मैं बताना चाहूँगी कि सुबह में डीडीए का अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव चलेगा और 4 बजे से प्रतिदिन 16, 17, 18 को हमारा प्रोग्राम जो है बानसेरा पार्क में निशुल्क है। बिल्कुल आप लोग आ सकते हैं। हमने पार्किंग की व्यवस्था करी है और उसके बाद और भी सुविधाएं हमने वहाँ पे उपलब्ध कराने का प्रयास किया है। डीडीए के कोलैबोरेशन से हमने वहाँ पे फूड स्टॉल्स भी हैं जो कि डीडीए आई एम श्योर कल्पना जी विल इलैबोरेट ऑन दैट ऑल्सो। तो एक रंगारंग कार्यक्रम होने वाला है जिसके अंदर आप दिन के अंदर रंग बिरंगी पतंगे उड़ते हुए देखेंगे और खासकर ये संक्रांति और लोहड़ी और ये फेस्टिव सीजन जो है उसके बैकड्रॉप में आप देख सकते हैं कि दिन में आप जो है दिल्ली में पतंग महोत्सव का आयोजन है और शाम को जो है वहाँ पे नृत्य और संगीत जो कि आईसीसीआर पिछले ये 11वां एडिशन है तो 10 एडिशन इसके हो चुके हैं। हमने उसका आयोजन किया है तो आप सब सादर आमंत्रित हैं और आप लोगों से अनुरोध है कि इस प्रकार से आप जो है अपनी इस इंफॉर्मेशन को अपने चैनल्स के थ्रू अपने माध्यम के थ्रू जरूर इसको आप आगे करिए। और डीडी हमारा पार्टनर रहा है। डीडी ने हम डीडी भारती पे हमारे जो है पुराने जितने भी फेस्टिवल हुए हैं खासकर फोक फेस्टिवल बिम्स्टेक फेस्टिवल वो टेलीकास्ट हुए हैं तो हम आपसे भी अनुरोध करेंगे कि आप बाद में डीडी भारती पे इसको चला सकते हैं। और इसी के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और कल्पना जी को मैं अनुरोध करती हूँ कि आप अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव के विषय में बताएं। धन्यवाद। यहाँ पे जो आपको आईसीसीआर के म्यूज़िक एंड डांस फेस्टिवल के बारे में बताया गया है, ये लास्ट ईयर हमने आईसीसीआर का ही एक बहुत खूबसूरत प्रस्तुति देखी थी हमारे बासेरा पार्क के ऊपर। और हमारा जो काइट फेस्टिवल था वो भी एक बहुत सक्सेसफुल प्रोग्राम था। तो एक छोटा सा थॉट आया हम सब लोगों के जो भी ऑर्गेनाइजर्स थे कि ये दोनों के दोनों फेस्टिवल जो कि आपस में ही बहुत एक सक्सेसफुल रहे, उनको एक बार जॉइन करके देखें तो क्या निकल के आता है। बाय एंड लार्ज जो हमारा फेस्टिवल है आईसीसीआर वालों का, दैट इज़ मोर इन द इवनिंग। और दिन के टाइम पे हम लोगों ने उस टाइम को थोड़ा सा और जस्टिफाई करके हमने दिन के टाइम का उसे फेस्टिवल बना दिया है। तो बांसेरा पार्क जैसे आपने ऑलरेडी शायद सुना होगा क्योंकि पीछे काफ़ी न्यूज़ में आया है। एक पार्ट है जो कि दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी इसको यमुना के तट के 11 प्रोजेक्ट्स के बीच में से एक प्रोजेक्ट है जिसको कि हम लोग बांसेरा कहते हैं। दिस इज़ अबाउट 40 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये काफ़ी बुरी हालत में था क्योंकि यहाँ पे काफ़ी गंदगी थी, बहुत निगलेक्टेड था। उसको 2022 में हमारे माननीय एलजी साहब मिस्टर विजय कुमार सक्सेना जी के गाइडेंस में बहुत अच्छे से इसको डेवलप किया है। और जो हमें इस पार्क के बारे में अच्छा लगता है वो ये अच्छा लगता है कि ये एक रिकॉर्ड टाइम में बहुत ही खूबसूरत चीज़ एक दिल्ली वालों को मिल पाई है जो कि रिक्रिएशनल भी है और यहाँ पे फंक्शंस भी हम लोग बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। तो ये जो काइट फेस्टिवल यहाँ हम लोग कर रहे हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, सबसे पहला जो काइट फेस्टिवल हम लोगों ने किया था वो इसी पार्क में किया था और वो पहला ऐसा बड़ा फेस्टिवल था जो हमने बांसेरा में किया था। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि काइट फेस्टिवल हमने बांसेरा से शुरू किया था और बांसेरा में सबसे पहला बड़ा फेस्टिवल यहीं पर ही हुआ था। दिस इज गोइंग टू बी द थर्ड एडिशन ऑफ द काइट फेस्टिवल इन बांसेरा। यहाँ पे नेशनल इंटरनेशनल दोनों जगह से दोनों ही काइटिस्ट यहाँ पे आमंत्रित हैं। आप भिन्न भिन्न तरह के डिफरेंट शेप साइजेस जॉनरे हर बच्चों के बड़ों के सबके मनभावन फेस्टिवल काइट्स आप देख पाएंगे कि यहाँ पे उड़ेंगी। एक हिस्ट्री ऑफ काइट विल ऑल्सो बी डिस्प्लेड देयर। एक एग्जीबिशन होगी जिसमें कि जो भी वहाँ पे विजिटर्स आएंगे वो लोग उस काइट कहाँ से किस तरह से डेवलप हुई, व्हाट वाज द रीजंस टू गेट इनटू डिफरेंट शेप्स ऑफ काइट्स,
वो सब भी वहाँ पे एग्जिबिट होगा। एक छोटा सा काइट का ही बाजार भी होगा, जो भी वहाँ पे विजिटर्स आएंगे वो अगर देखने के बाद ऑब्वियसली आप देखेंगे, आप सब लोग जब आएंगे तो आपको लगेगा कि हम भी काइट उड़ाएं। तो अगर काइट कोई उड़ाना चाहता है और घर से नहीं लेके आया तो वहाँ पे प्रावधान है कि आप वहीं से ही काइट खरीद के उसको मांझा वगैरह बना के, हम लोग जो एक भूल चुके हैं ये अपनी परंपरा, उसको आगे बढ़ के उसे सीखे। वहाँ पे हेल्पर्स होंगे जो आपको काइट में मांझा बना के उसको बांधना सिखाएंगे और उड़ाना सिखाएंगे। तो इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वेरी मिक्स्ड काइंड ऑफ अ फीलिंग, जहाँ पे बुजुर्ग लोग जो हैं वो अपने बचपन याद करेंगे और बचपन के लोग देखेंगे कि ये क्या हो रहा है जो कि हमारे बुजुर्ग लोग कर रहे हैं, जो हमें नहीं पता कि ये लोग कर सकते हैं। इट्स अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल मिक्सचर ऑफ एक्टिविटी दैट वन कैन सी। वहाँ पे कुछ राइड्स, जैसे कि आप मानते हैं कि बच्चे जहाँ भी होंगे थोड़ी बहुत राइड्स भी होंगी। देर आर गोइंग टू बी स्टॉल्स विच विल बी अवेलेबल फॉर पीपल, कि अगर वो अपने परिवारजनों के साथ आ रहे हैं तो कुछ खान पान खाने की अगर बात हो तो वहाँ पे वो पे करके ले सकते हैं। ये काइट फेस्टिवल हम लोग कायदे से तो मकर संक्रांति के टाइम करते थे, बट क्योंकि हमने इसको आईसीसीआर के फेस्टिवल के साथ इसको कंबाइन करने की प्रयास किया है, तो इट हैज़ वी हैव शिफ्टेड स्लाइटली द डेट्स, वी हैव शिफ्टेड। तो मकर संक्रांति जिसमें हम लोग ये कहते हैं कि सन शिफ्ट करता है उत्तरायण की तरफ, उसको हम भी थोड़ा सा शिफ्ट करके उसी से ही हिंट लेके हमने भी शिफ्ट किया है और इनके साथ आ गए हैं। बाय एंड लार्ज हम ये मान के चल रहे हैं कि जो बांसेरा एरिया है हमारा, वैसे तो डीडीए अपने पार्क्स में टिकट्स नहीं लगाता है, लेकिन अभी ऑफ लेट थोड़ा सा हमने एक अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए एक थोड़ा सा बहुत ही मामूली सा एक टिकट लगाना शुरू किया है। बांसेरा में भी एक छोटा सा टिकट है, लेकिन जैसे ही आईसीसीआर का फेस्टिवल शुरू होने का टाइम होगा यानी कि 3 बजे तक, तब वो टिकट लेना बंद कर दिया जाएगा। आप ये बांसेरा जो एरिया है आप देखेंगे इसको, अगर आप दिन में भी आएंगे तब भी देखेंगे कि बांसेरा माने के बांस का बसेरा। तो वो यहाँ पे ये एक डंप यार्ड था जो कि अबाउट 30,000 से भी ज़्यादा बैम्बू यहाँ पे पिछले 2022 के बाद से लग चुके हैं। और आप ये देख के आश्चर्यचकित होंगे कि यहाँ पे इतनी हरियाली है कि आप ये बिलीव नहीं कर सकेंगे कि आप दिल्ली में हैं। उसी एरिया में आपको यमुना भी दिखती हैं, वहीं से आपको हुमायूंस टूम भी दिखता है। वहाँ पे एक आप देखेंगे कि टेरेसेस भी हैं, वहाँ पे एक बाज़ार जो कि हम लोगों ने भी रिसेंट एडिशन किया है, जहाँ पे वीकली मार्केट की तरह, जैसे पहले हम लोग सुंदर नर्सरी के बारे में सुनते थे, उसी को ही मैं कहूँगी कि टक्कर देता हुआ एक और एरिया है जो कि हम दिल्ली वालों को एक और एडिशनल एरिया मिल के आया है, जहाँ पे रेस्टोरेंट के साथ साथ एक एरिया हमने क्यूरेट किया है, जहाँ पे कि हर हफ्ते 10 दिन के बाद वहाँ का जो कॉन्सेप्ट है वो चेंज होता है। सो आप आइए इस पर्टिकुलर दिन, तीनों दिन आइए। एक सुबह के टाइम पे काइट उड़ाएं, शाम को खाना पीना खाने के बाद हमारे साथ इंटरनेशनल डांस एंड म्यूजिक देखें। अगले दिन भी आइए और नॉन फेस्टिवल वाले डेज भी आके आप देखिए, आपको ये बहुत ही बढ़िया एक डेस्टिनेशन पॉइंट मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद कल्पना जी। सबसे अच्छी बात ये है कि ये उत्सव जो है वो वीकेंड पे है, तो अगर आप शुक्रवार को नहीं आ सकते हैं तो शनिवार और इतवार को जरूर आइए। और पतंग की महत्ता तो आज भी हमने देखी जब माननीय प्रधानमंत्री जी जर्मन चांसलर के साथ में पतंग उड़ा रहे थे, तो आई थिंक टाइमिंग बहुत ही सही है। और इसके साथ में इसका जो कॉम्बिनेशन है डांस एंड म्यूजिक का, वो आई थिंक उसको और ज्यादा बढ़ाएगा। तो अब मैं आप सभी को, मीडिया मित्रों को और इन्फ्लुएंसर्स को एक अगर इंटरैक्टिव सेशन हम ओपन करेंगे, मैम विद योर परमिशन,
और अगर आपके सवाल हैं, आप चाहे काइट फेस्टिवल को लेके, चाहे डांस एंड म्यूजिक फेस्टिवल को लेके, आप पूछ सकते हैं वन बाय वन। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए और उसके बाद में जो भी आपका सवाल है, चाहे वो हिंदी में हो, चाहे वो इंग्लिश में हो, आप पूछ सकते हैं।